Okay, yes, Mark everyone. I hope you all are doing good. So today we are going to do always the paper which is calculator version ka. It's going to be May June paper 2025 variant 23. ठीक है. So हमने इस पेपर को ट्राई करना है. सेम पैटर्न है 2 hours 100 marks and let's start. So we all know that when we are doing our papers हमने जो one by one usually solve नहीं करना होता. We go for the easier ones first and then we move on to the difficult ones in the second attempt. ठीक है. So that's what we are going to do usually when we are practicing या हम घर पे खुद से पेपर को solve कर रहे हैं. ठीक है. But now what will we do? We will just go from one by one. एक एक question को review करेंगे and if you have any confusions in the difficult or easier ones, उसको हम skip करेंगे and then we no if you find some questions easy we'll skip those questions and the other ones we'll do it for you. ठीक है. So that's how we are going to attempt these questions. So let's mark the easier questions first. जल्दी से without wasting much time, let's move on to the paper. Now let's have a look. If you have a look, it says write it correct to 2 decimal places. This question we'll try it. It's very easy. A question of ratios, we'll try it. Very easy. Up to you. If you find it easy, symmetry, give it a shot in the first attempt. Easy questions, and then again simplification, inequalities, very easy. Up tak everything is very easy. ठीक है. So probably we'll skip probability for the first scenario. सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना पड़ेगा. इग्नोर करो. फंक्शंस इजी. ठीक है. इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई करेंगे एंड देन सेट्स अप टू यू इफ यू कंफर्टेबल और नो. Again up to you if you're comfortable or no. We can try this for sure. Easy question and easy factorization is paper with almost there are so many paper so many questions which are going to be relatively easy with less reading time required. Okay, so circle property is your call. If you find it easy, go for it in the first try, otherwise leave it. Okay, so it's totally dependent on you on how comfortable you are. So we'll skip these, skip, give it a try. This one's easy. Okay, so this one's easy, you can do it in the first go and then skip. ठीक है. So we're done with the paper. ठीक है. पहला हमारा paper इस तरीके से हम करेंगे. Now this is the first step that you're going to do for your paper. Now am I recording? Yeah, yep, I am. ठीक है. अच्छा, we'll do it easy, don't worry, we'll try everything. अच्छा, अब मुझे बताइएगा, let's see if you want to do any of these questions or you want me to skip these. Can we write this to 2 decimal places guys? 2 decimal places मतलब आपने यहाँ तक आंसर करना है, इस वैल्यू को राउंड ऑफ करना है यहाँ पे. ठीक है. So this is going to be, what can I say, this is going to be 4.2 decimal places after the decimal 2 values 4.24. ठीक है. इसको 2 significant figures 3 4 0 0 0. वेरी इजी. ठीक है. आगे चलो. रेशियोज में कन्वर्ट कर सकते हैं. इजी है. यस और नो, दोनों के शेयर्स निकाल सकते हैं. लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम. अगर किसी भी एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी, लेट मी नो, आई डू दैट क्वेश्चन फॉर यू गाइस. ठीक है. स्किप. चलो लेट्स डू दिस. कहता है शेड वन स्मॉल स्क्वायर सो द डायग्राम हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2. बेटा रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 का मतलब क्या है कि व्हेन यू आर रोटेटिंग अ शेप 360 डिग्रीज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, जब आप 360 डिग्री रोटेट कर रहे हो तो कितनी बार आपके पास सिमेट्रिक बनना चाहिए? इट शुड बी सिमेट्रिक ट्वाइस व्हेन यू रोटेटिंग इट. सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस शेप? ये आपके पास सिमेट्री कब फॉर्म होगी? जल्दी से बताओ. व्हेन विल द सिमेट्री फॉर्म? कैन यू थिंक ऑफ दिस? एक काम करते हैं, इंटरनल पैटर्न बॉटम करते हैं. लेफ्ट ऊपर वाला. गुड जॉब. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मिडिल पैटर्न. ठीक है. इंटरनल पैटर्न को अलग से सॉल्व करना है, एक्सटर्नल को अलग से करना है. मुझे बताएं इंटरनल पैटर्न पे 180 डिग्रीज का मतलब है कि एग्जैक्टली ऑपोजिट पे शेड होगा. सो कैन आई से व्हेन दिस रोटेट्स लाइक दिस, सो इट विल बी शेडेड एट 180 डिग्रीज आफ्टर ऑर्डर 2. सो डू आई नीड टू शेड एनीथिंग फ्रॉम द इंटरनल पैटर्न? क्या इंटरनल पैटर्न में कुछ शेड करने की जरूरत है? नो. ठीक है. जरा इन एक्सट्रीम बॉक्सेस को देखें. जब एक्सट्रीम बॉक्सेस रोटेट हो रहे होंगे, कैन आई से दीज वुड कम टू द कॉर्नर boxes itself, so that means all of this is sorted. Now what I need to worry about is probably these boxes. तो इन boxes की आपके पास कैसे बनेगी symmetry? What do you think? हमने इसके मल्टीपल मेथड सीखे हैं. वन वे ऑफ डूइंग इट इज हम काउंट कर लेंगे सारे बॉक्सेस को. यस, 1 2 3 4 5. ठीक है. वील काउंट ऑल दीज बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16. बेटा ऑर्डर 2s का मतलब क्या है? 16 over 2. the answer turns out to be 8. that means after every 8 numbers you're going to repeat it. ठीक है. हर 8 के बाद you're going to repeat it, so it's going to be 1 2 3 4 5 6 7 8. बेटा मुझे बताओ कहाँ कहाँ शेड हुआ हुआ है, कहाँ कहाँ शेड करना है आपने, इसको जरा देख कर बताओ.
हर जगह आपके पास क्या शेड हुआ हुआ है, 2 शेड हुआ हुआ है, 6 शेड हुआ हुआ है, ठीक है। सो 2 शेड हुआ हुआ है एंड 6 शेड हुआ होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू, ठीक है। ये शेड इन बॉक्स 6 जी। पेपर 2 है, बिल्कुल पेपर 2 फॉर ओ लेवल्स का पेपर 2 है ये। सो IGCSE का पेपर 4 हो गया। कहता है शेड वन कहता है शेड वन स्मॉल स्क्वायर सो द डायग्राम हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री। व्हेन यू नॉट श्योर कि वो लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी होगी, वी डू ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर का मतलब क्या है, हर पॉसिबल लाइन ऑफ सिमेट्री बना लो फिर शेड करके देख लो। क्या मतलब, अब मुझे बताओ कि इफ आई कंसीडर दिस लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर मैं ये लाइन ऑफ सिमेट्री करूं, मुझे बताओ कि हाउ मेनी बॉक्सेस विल आई हैव टू शेड। बेटा इसको सेटिस्फाई करने के लिए ये करना पड़ेगा, इसको करने के लिए ये करना पड़ेगा, राइट। बट आई एम ओनली अलाउड टू शेड वन बॉक्स, सो दिस इज नॉट अ करेक्ट लाइन ऑफ सिमेट्री। गिव दिस अ ट्राई। बेटा यहाँ पे ये फाइन है, ये सॉल्व्ड है, ये सॉल्व्ड है, ये भी सॉल्व्ड है। सो कैन आई से आई ओनली नीड टू शेड दिस बॉक्स एंड वेयर विल दैट गो, दैट विल गो ऑन दिस साइड। सो इज दिस इजी, कैन वी डू दिस गाइस, यस और नो? ठीक है, गुड जॉब। एनी डिफिकल्टी विद दीस पार्ट्स? आई बिलीव नो। कैन वी कन्वर्ट दीस? ये वाली मैं करवा देता हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ देयर इज वन कन्वर्जन दैट वी हैव लर्नड, ठीक है। क्या सीखी हमने बेटा, सेंटीमीटर क्यूब और लीटर्स में। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये तो वॉल्यूम आपके पास मीटर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन और ये वॉल्यूम लीटर्स में गिवन है। सो डू वी रिमेंबर एनी सॉर्ट ऑफ कन्वर्जन? कोई कन्वर्जन याद है हमें? डू वी रिमेंबर एनी कन्वर्जन गाइस, or do we know any conversion? We've learned that 1 milliliter is equivalent to 1 centimeter cube। बेटा सेंटीमीटर क्यूब और मिलीमीटर एग्जैक्टली बराबर होते हैं, ठीक है। 1 centimeter cube is equals to 1 milliliter। मुझे बताओ ये कितने मिलीलीटर्स हो जाएंगे? कैन आई से दिस इज गोइंग टू बी 450 मिलीलीटर्स, ठीक है। सो 450 मिलीलीटर्स, लीटर्स में कितने होंगे? 1 लीटर इज 1000 मिलीलीटर्स, ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रही थी। सो दिस इज 1 लीटर वुड बी और दैट वुड बी 1000 milliliters. So this is going to be what? This is going to be 0.45. ठीक है? Any confusion so far? Any confusion? No. ये कर सकते हैं सॉल्व, 6 ट्राई हो जाएगा, 6 कर लेंगे खुद से, ऐड करेंगे तो क्या होगा, 5 + 2a 7a हो जाएगा, ठीक है। 3b - 4b क्या होगा, दैट वुड बी -4b। वेरी इजी, नथिंग टू वरी अबाउट। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा जरा देखो, जैसे c⁻12 डिवाइडेड बाय c⁻4। जब डिवाइड होता है तो पावर्स क्या होती है, सब्ट्रैक्ट। सो दिस इज गोइंग टू c⁻8, नथिंग टू वरी अबाउट। इनइक्वालिटीज में क्या करना है, देखो आपने एनी वैल्यू बतानी है, नॉट एनी बट राइट डाउन ऑल द इंटीजर्स। यू हैव टू स्टेट ऑल द इंटीजर्स दैट सैटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। तो बेटा इस इनइक्वालिटी को क्या कुछ सैटिस्फाई करते हैं, जरा इसको समझो। अब द स्टार्ट फ्रॉम -3 इक्विवेलेंट का साइन है, इक्वल्स का साइन है, तो दैट मींस x की वैल्यू वुड बी -3 या उससे बड़ी, ठीक है। सो आप कहेंगे -3 -2 -1 0। नाउ a debate is, do we add 1 या नहीं? 1 ऐड होगा या नहीं होगा? Do we add 1 to this? 1 ऐड होगा? नहीं होगा। Why? Because there is no equals to, so बेटा 1 मेरे पास ऐड नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, probability skip functions, let's do this, ठीक है। इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट है। पहला पार्ट कर सकते हो f(2), वेरी इजी, यस और नो? f(2), ठीक है। कौन सा वाला 2 मार्क्स था? देखो फ्री के मार्क्स है ना, फिर इतना आसान है। f(2) कर सकते हो, दिस इज वेरी इजी। f(2) is going to be what? That is going to be 3 × 2 - 5, so this is 6 - 5 which gives us 1, ठीक है। g of x is 18, इसका मतलब क्या है, this whole thing is supposed to be equivalent to 18। so आप कहोगे 2, बेटा 3 आपको आई डोंट थिंक एग्जामिनर देता है। आई हैव नॉट कम अक्रॉस सच क्वेश्चन एट द मोमेंट फॉर ओ लेवल्स। आपने देखे कहीं 3 फंक्शंस एक ही साथ 3 प्लग इन हो रहे हो? एज फार एज आई रिमेंबर नहीं देता एग्जामिनर, ठीक है। सो 2 - 6x अगर एग्जाम्पल है तो मुझे दिखाओ लेवल्स की 5 मिनट्स एनी एग्जाम्पल, ठीक है। हाँ तो हो सकता है उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए, दैट कुड बी वन केस, ठीक है। या उन्होंने ऑलरेडी आपको एक कॉम्पोजिट फंक्शन दे दिया गया f(g)(x), आपको शायद ये कॉम्पोजिट बनाया होगा, फिर तीसरा दे दिया होगा, लेट्स सपोज प्लग इन h(f(g)(x), समथिंग लाइक दैट, दैट इज पॉसिबल, ठीक है। अच्छा अब कहते हैं इसको सॉल्व करो, दिस वुड बी व्हाट, दिस वुड बी हाँ ठीक है। सो इक्विवेलेंट टू 18, सो हमारे पास क्या होगा, दिस वुड बी 2 - 18 इज इक्वल टू 6x बेटा। सो 2 - 18 इज व्हाट, दैट इज -16 इज इक्वल टू 6x, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट हैज टू बी -16/6
तो बेटा दिस वुड बी व्हाट 8 ओवर माइनस 8 ओवर 3, सो यू कैन डू दिस पार्ट, ठीक है। सो माइनस 8 ओवर 3। इसके बाद कहते हैं एफ जी एफ फोर सॉल्व करना है। सो एफ जी एफ फोर कैसे होगा, आई थिंक दिस इज इजी एज वेल, कर सकते हैं। कॉम्पोजिट कैसे निकलता है इसको जरा मैं समझा देता हूँ अच्छे से। एफ जी एफ फोर का मतलब ये है योर मेजर फंक्शन द फर्स्ट फंक्शन इज सपोज टू बी एफ, जो पहले आता है, ठीक है। सो आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या है बच्चों, एफ ऑफ एक्स इज गोइंग टू बी 3x जी, शाबाश, 3x माइनस 5। अब इसके अंदर आपने क्या प्लग इन करना है, जी प्लग इन करना है, ठीक है। सो आपने इस f के अंदर प्लग इन करना है जी। सो वेयर एवर यू हैव x, यूर सपोज टू राइट अ ब्रैकेट, ठीक है, राइट अ ब्रैकेट, ब्रैकेट आ गया। अब इस x के अंदर क्या आ जाएगा, सपोज टू प्लग इन g। g क्या था, दैट वाज 2 minus 6x, so you plug in 2 minus 6x over here, and this would be what, 3 times 2 6 minus 3 times 6, that is 18x minus 5, and you can solve this to be what, 1 minus 18x, ठीक है। एनी प्रॉब्लम सो फार, नहीं अभी इसमें हमें प्लग इन भी करना है, सॉरी वी आर आल्सो सपोज टू प्लग इन। क्या चीज प्लग इन करनी है आपको, एफ जी एफ फोर था। सो एफ जी एफ फोर क्या होगा, एफ जी एफ फोर वुड बी 6 minus 5 is 1 minus 18 times of 4। जल्दी से आंसर बता दो क्या आ रहा है फटाफट, let me know what the answer is for this part। this is question number 10 ना, जल्दी से देखकर बताओ what is the answer। कैलकुलेटर्स निकाल लो, दिस इज कैलकुलेटर वर्जन, आई वांट कैलकुलेटर्स विथ यू। -71, चलो -71, ठीक है। अच्छा, मे बी इट्स माई वॉइस, आई एम स्पीकिंग स्लोली टुडे, सो दैट कुड बी वन रीजन। अच्छा, इस पार्ट को जरा गौर से देखना। अब ये पार्ट जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, डोमेन एंड रेंज, दिस इज बीइंग टेस्टेड अ लॉट रिसेंटली, न्यू सिलेबस का पार्ट है। सो आपने इस बात को जरा गौर से समझना, डोमेन एंड रेंज कैसे होगी। अच्छा, अब कहता है फाइंड द डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स इज x ग्रेटर देन -8, फाइंड द रेंज ऑफ g ऑफ x। पहले इस बात को समझो कि फंक्शन g है क्या, फंक्शन g इज 2 minus 6x, ठीक है। तो फंक्शन g क्या है, g ऑफ x इज 2 minus 6x, ठीक है। सो 2 minus 6x आपके पास है। मुझे एक बात बताओ कि मेरे पास 2 minus 6x कैसी इक्वेशन है, व्हाट टाइप ऑफ इक्वेशन इज दिस, ये किस टाइप की इक्वेशन है मेरे पास, ये किस टाइप की इक्वेशन है मेरे पास, इट्स अ लीनियर इक्वेशन। हाउ डू आई नो, x की पावर क्या है बच्चों, x की पावर कुछ भी नहीं है, बेसिकली 1 है, सो इट्स अ लीनियर इक्वेशन। सो मैं इसको किस चीज के साथ कंपेयर कर सकता हूं, हैव वी लर्नड एनी बेसिक इक्वेशन, गुड जॉब। किसके साथ कंपेयर कर सकता हूं, आई कैन ऑलवेज कंपेयर इट विद लीनियर इक्वेशन, किसके साथ यूजुअली, mx प्लस सी के साथ, ठीक है। सो अगर मैं इस बात को जरा समझूं, ठीक है, ये अभी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं बता रहा हूं। सो -6x प्लस 2 वेयर दिस वुड बी y mx प्लस सी। मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे m की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, अगर ये मैं फंक्शन ड्रॉ करना चाहूं तो m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू वुड बी -6, और c की वैल्यू क्या होगी, +2, 2, पॉजिटिव 2, ठीक है। सो आई हैव लर्नड दैट m की वैल्यू इज -6 एंड c की वैल्यू इज 2, ठीक है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ जरा बात को समझिएगा। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, मैं ग्राफ की बना रहा हूँ बिकॉज डोमेन एंड रेंज अगर आप ग्राफ बनाओगे आपके लिए काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। व्हाई वुड दैट हेल्प अस, जरा इस बात को समझिएगा। अच्छा, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, कैन आई, डू वी ऑल एग्री दैट दिस हैज टू पास फ्रॉम 2, एनी क्वेश्चन सो फार, डू वी एग्री विद दिस फैक्ट। ग्रेडियंट नेगेटिव का मतलब क्या है, अब ये यहां से राइट साइड पर नीचे जाएगा, लेफ्ट साइड पर नीचे जाएगा, वेयर विल दिस गो, अब ये कैसे ड्रॉ होगा, राइट साइड। राइट साइड पर कहां जाएगा, नीचे जाएगा, राइट। इट्स अ डाउनवर्ड ग्राफ लाइक दिस। डू वी ऑल एग्री विद दिस फैक्ट, यस और नो, एग्री करते हैं ना इस बात से कि ये फंक्शन जी एफ एक्स है कैसा। हमने क्या डिस्कस किया था क्लास में, व्हाट इज डोमेन, डोमेन होती क्या है बेटा, डोमेन आर दी वैल्यूज ऑफ एक्स, डोमेन क्या होती है बेटा, दीज आर दी वैल्यूज ऑफ एक्स और विच यू कैन से इज बेसिकली योर इनपुट, ठीक है। रेंज आपके पास क्या होती है, रेंज इज बेसिकली आउटपुट वैल्यूज विच इज बेसिकली g ऑफ x या y की वैल्यू और y, ठीक है। मतलब क्या है, अगर मैं इस बात को समझू, कहना है डोमेन इज ग्रेटर देन -8, मतलब ऑल ऑफ दीज वैल्यूज आर सपोज टू बी, मतलब ये जो डोमेन है या आपने ग्राफ बनाना है ग्रेटर देन -8 पे, ठीक है। व्हाट डज दिस मीन, दिस क्वेश्चन मीन्स दैट यू आर सपोज टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर बेसिकली ग्रेटर देन -8, जब आपके पास -8 से वैल्यूज आगे की तरफ बन रही हो। क्या ये बात समझ आती है, यस और नो, डज दिस मेक सेंस, यस। ठीक है। यहाँ पे कहीं -8 होगा, सो दिस इज द रीजन दैट यूर कंसर्न अबाउट ऑन दिस साइड, ठीक है। अच्छा,
अब इसका मतलब क्या है, कैन आई फाइंड आउट द कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ दिस -8? क्या मैं इसकी कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू -8 निकाल सकूं? तो कंसिडरिंग आई नो दिस इक्वेशन टू बी g of x is equals to 2 - 6x, yes or no? क्या निकाल सकते हैं हम कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू, हाँ या नहीं? yes or no? कैन वी फाइंड आउट द कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू? क्या करेंगे हम यहाँ पे बेटा, हम यहाँ पे वैल्यू प्लग इन कर लेंगे x की -8। जब मैं x की वैल्यू -8 प्लग इन करूंगा तो y क्या आएगा मेरे पास, जल्दी से बताओ, या g of x क्या आएगा? कहना है से g of x is supposed to be equivalent to 2 - 6 times of -8। तो बेटा ये क्या आएगा, 2 - -48 प्लस 48, एंड g की वैल्यू क्या आएगी, g की वैल्यू आएगी 50। डज दिस मेक सेंस? क्या ये बात समझ आती है कि समवेयर हियर आई विल गेट 50, somewhere here I will get 50? Does this make sense? Is this part clear? अच्छा, अब मुझे बताओ कि एज ग्राफ क्या था, ग्रेटर देन -8 का था। मुझे बताओ कि अब हमने डोमेन तो बताना है बट इनइक्वालिटी के साथ बताना होता है मोस्टली। सो टेल मी व्हेन आई गो टू द राइट व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ओवर हियर? अगर मैं ग्राफ यहाँ तक ड्रॉ कर रहा हूँ, सो कहना है से मेरे पास यहाँ पे मैक्सिमम ग्राफ जो बनेगा वो 50 तक बनेगा, एंड सारी वैल्यूज इससे नीचे की तरफ होंगी या वैल्यूज इससे ज्यादा की तरफ होंगी? व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द आउटपुट, द वैल्यूज ऑफ y, आई एम स्पीकिंग ऑफ रेंज। So values of y, will these be greater than 50 or lesser than 50? जल्दी से बताओ। लेस देन 50, Less. लेस देन 50। तो बेटा यहाँ पे आंसर क्या आ गया मेरे पास, g of x is supposed to be। अब एक सवाल है, इज इट ओनली लेस और इज दिस लेस देन इक्वल्स टू? ओनली लेस और लेस देन इक्वल्स टू, जल्दी से बताओ क्या होगा? Less than. ओनली लेस देन। वाई लेस देन इक्वल टू नहीं आएगा बेटा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या ये इसमें -8 इंक्लूडेड था? वाज -8 इंक्लूडेड इन दिस? ओनली लेस। क्या -8 इसमें इटसेल्फ No. इंक्लूडेड था? नो, इट वाज सपोज टू बी अ वैल्यू ग्रेटर देन -8, मतलब -8 से थोड़ा सा आगे। इसका मतलब वैल्यूज 50 की क्या होंगी, वो भी 50 से थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट हो रही है। सो वी से वैल्यूज फॉर g of x is supposed to be less than 50. Now one thing that you need to note कि बेटा domain is always answered with respect to x and range is always answered with respect to function of x। मतलब वो g of x, h of x जो भी होगा, बट वो आपने इस फॉर्म में आंसर करना है। इज दिस पार्ट क्लियर? इज डोमेन एंड रेंज क्लियर गाइस? यस और नो? Is it clear? So while finding out domain and range, it is highly recommended that you draw the graph। बेटा अगर आप ग्राफ ड्रॉ नहीं करके आते ना, तो आप शायद x is greater than 50 लिख कर आते हैं, ठीक है? सो आपके एग्जामिनर ने शायद एक नंबर काट लेना था। दूसरी चीज, अगर एक क्वाड्रेटिक कोई ग्राफ होता ना, फिर तो आपका आंसर सही आ ही नहीं सकता था डायरेक्टली, ठीक है? यू वुडंट हैव फाउंड आउट the answer correctly। अच्छा, इसके लिए जैनब एक काम करो, I uploaded, you were again absent I believe, so I uploaded a 15-minute session of domain and range। so आप functions के अभी जाके चेक कर लो, उस पे 15 मिनट का कोई लेक्चर अपलोड हुआ होगा बेसिक, and the more questions we see in the yearly papers मैं कराता रहूंगा साथ ही साथ, ठीक है? उसमें I did a 15 minutes of basic concept इसका। पास पेपर क्वेश्चन हमने उसमें नहीं किए थे, सो पास पेपर क्वेश्चन टुडे वी हैव डन वन, ठीक है? ऐसी ईयरलीज में आते रहेंगे, हम करते जाएंगे साथ। अच्छा, जरा इसके जरा नीचे चलते हैं। लेट्स ट्राई 13 करते हैं। जरा मुझे बताइएगा 13 कैसे होगा? इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वेश्चन। कहता है राइट 1.23 एक्सपोनेंट -4 एज एन ऑर्डिनरी नंबर। बेटा ऑर्डिनरी नंबर में आसानी से लिख सकते हैं इसको। -4 को आपने हटाना है, सो -4 को कैसे हटाओगे? देयर इज वन ट्रिक दैट वी लर्न। बेटा ये पैसे कहाँ पे हैं? बैंक में, ठीक है? सो और इससे आपने जान छुड़ानी है, राइट? सो अगर आपने इससे जान छुड़ानी तो आप क्या करोगे, वो आप यहाँ से लाओगे, राइट? सो यू ऐड 4 टू दिस बट यू टेक आउट मनी फ्रॉम हियर, सो दिस वुड be what? Yes, move to the left, yes, move to the left, and this would become what? 4 units। so आप 4 units करोगे, 1 2 3 4 0.000 1 2 3, ठीक है? सो बिकॉज आपने हाथ से पैसे निकाल के बैंक में जमा किए, सो आपके पास हाथ में पैसे कम हो जाएंगे, ठीक है? इज दिस पार्ट क्लियर हिबा? डू यू हैव एनी कंफ्यूजन? इज दिस क्लियर? ठीक है, चलो। अच्छा, अब पार्ट बी देखो, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड द फाइंड एंड द वैल्यू ऑफ वाई। बेटा एक्स और वाई ये रहा, सो इसको आप सब्जेक्ट बना लो, सबसे आसान काम, ठीक है? सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या होगा, एक्स into 10 power what, y is supposed to be equivalent to what, 9.1 into 10 power 5 minus of 8.2 into 10 power 4। बेटा एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में मैंने क्या बताया था, कौन सी पावर को कन्वर्ट करना चाहिए? कौन सी पावर को कन्वर्ट करें, 5 को कन्वर्ट करें या 4 को कन्वर्ट करें? विच वन इज इजियर? लेस एफर्ट वाला। किसको कन्वर्ट Four. करेंगे? 4 को कन्वर्ट करेंगे। सो 4 को कन्वर्ट करेंगे, सो दिस वुड बी +1। तो बेटा यहाँ पे एक वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, दिस वुड बिकम व्हाट, 9.1 एक्सपोनेंट 10 पावर 5 माइनस ऑफ 0.82 into 10 पावर 5। कैलकुलेटर से 9.1 माइनस 0.82 करो, क्या है आंसर? जल्दी से बताओ, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस?
क्या आंसर आएगा? कैलकुलेटर यूज कर लो, फटाफट बताओ व्हाट इज द आंसर गाइस। कैलकुलेटर पेपर है। हम लोग सीधा नहीं डाल सकते? क्या सीधा भी कर लो, बट उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर नहीं आएगा आई थिंक। कैलकुलेटर में कैलकुलेटर तंग करता है, फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा दोबारा से। नहीं, ऑप्शन होता है ना साइड। कर लो वो भी ठीक है, कर लो। मुझे बता इसका क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से टेल मी द आंसर फॉर दिस। एनीवन? बेटा इसका बता दो ना सिर्फ। अच्छा चलो 8, चलो 8 टू 8, 8 टू 8 बेटा पूरा सब्ट्रैक्ट नहीं करने को कहा था मैंने, लेकिन चलो 8 टू 8 000। ठीक है, अब दोबारा से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ख्वारी करवा रहे हो अपनी भी मेरी भी। सो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वापस इधर आओगे, इधर। तो क्या हो जाएगा, दिस वुड बी 8.28 इंटू 10 पावर ऑफ 5 हो जाएगा। ठीक है, सो वैल्यू फॉर एक्स क्या होगी, दिस वुड बी 8.28 इंटू y की पावर would be 5। ठीक है, so is this part clear now जिमल? बात समझ आई? I only told you to subtract these because powers तो सेम रहेंगी ना, so powers को हम नहीं छेड़ेंगे, ऑलरेडी एक्सपोनेंट 5 में आंसर आता। बात समझ आई? Yes, Zimal, is this part clear? I think you're facing difficulty over here. Is this clear? Yes, चलो अगली क्वेश्चन देखो। फैक्टराइज इजी कर सकते हैं, easy to do, skip, are you sure? चलो skip, चलो want to do this, करना है? 4 marks, want to do this? No, skip everyone guys, कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसने करना हो? अगर करना है तो बता दें। skip, चलो since you all want me to skip, we'll skip। चलो एंड वी आर डन। ठीक है, वी आर डन विद द फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, पहला अटेम्प्ट हमारा हो गया आसान क्वेश्चंस का। अब आ जाओ दोबारा से। ठीक है, अब बताओ जरा ये क्या कहता है सवाल, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। इट सेज अ रेक्टेंगल इज डायमेंशंस 2.4 by 5.6। ठीक है, the rectangle is enlarged by a factor of 3.25। work out the dimensions of enlarged rectangle। क्या मतलब है बेटा, अगर एक रेक्टेंगल है 2.4 इंटू 5.6 का, तो जब इनलार्ज करेंगे मुझे बताओ, इनलार्ज बेटा क्या एक शेप एक डायमेंशन में होता है, बोथ डायमेंशन में होता है? मतलब क्या, विल यू ओनली इनलार्ज इट इन दिस मैनर और विल यू इनलार्ज इट इन बोथ मैनर्स? बोथ मैनर ना, गुड जॉब। सो बेटा क्या मैं कह सकता हूँ 3.25 टाइम्स इनलार्ज हो रहा है, सो बेटा ये भी मल्टीपल होगा, ये भी मल्टीपल होगा। सो आपने क्या करना है, इस वैल्यू को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी मल्टीप्लाई करना है, आंसर लिख लेना है। इजी, अंडरस्टूड? ठीक है, गुड जॉब, क्लियर। काफी इजी, ट्रांसफॉर्मेशन से भी रिलेट कर सकते हो अगर करना चाहो तो। ठीक है, दिस वी हैव डन। आगे प्रोबेबिलिटी करते हैं। A bag contains 4 black tiles। कितनी black tiles बच्चे? 4 black tiles। कितनी white tiles? 6 white tiles। A tile is chosen at random from the bag and is replaced। A second tile is chosen at random। complete the tree diagram। कैसा केस है? What case is this? रिप्लेसमेंट। So replacement में values पे effect होता है या नहीं होता? नहीं होता। नहीं होता ना, गुड जॉब। सो नहीं होता। सो बेटा ब्लैक के कितने ऑप्शन थे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्या होगी? व्हाट विल बी? 4/10। 4/10। सो बेटा अगर ये 4/10 है, कैन आई फाइंड दिस आउट इजीली? दिस वुड बी 6/10। 6/10 विथ रिप्लेसमेंट का केस है, सो दिस वुड बी सेम विदाउट एनी डिफरेंस। ठीक है, सो कोई इसमें एफर्ट की जरूरत नहीं है। आई बिलीव वेरी इजी फॉर 2 मार्क्स एंड 6/10। ठीक है, अगला पार्ट क्या कहता है देखो, कहता है वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ टाइल्स आर वाइट। दोनों वाइट कैसे निकालोगे? सो वाइट बेटा क्या मैं कह सकता हूँ सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी है वाइट की, कोई और ऑप्शन तो नहीं है? देख लो, यस और नो? नहीं। सो क्या करेंगे, 6/10 टाइम्स 6/10। सो आंसर क्या आ जाएगा? दैट वुड बी, ठीक है, सो दैट वुड बी व्हाट, 36/100। ठीक है, सो 36/100 लिखो या इक्विवेलेंट आंसर लिखो, दैट वुड बी करेक्ट। ठीक है, सिंप्लीफाई करना चाह रहे हो तो कर लो। अच्छा अब जरा इसको देखो, दीज आर आल्सो इजी, हम कर चुके ऑलरेडी। इसमें फाइंड क्या करना है जल्दी से बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है आजकल एग्जामिनर इसके, सिंपल और कंपाउंड के। क्या पूछा है? हाँ, सो बेटा उसको 6/10 का स्क्वायर करोगे, सो इट्स गोइंग टू बी 36/100 ना, सो यू नीड टू सिंप्लीफाई इट। हाँ, सो वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट पूछा है, सो अमाउंट पूछ रहा है। बेटा अमाउंट कैसे निकलता है सिंपल इंटरेस्ट के केस में? कैसे निकलता है अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट? P प्लस आई करोगे, शाबाश बेटा। आपने सिंपल इंटरेस्ट का पहले फॉर्मूला लगाना है, PRT/100, और फिर बेटा आपने अमाउंट में क्या करना है, इसको
अमाउंट में ऐड कर लेना, इसको प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर लेना, ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू, इट्स 480 फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर 5 years एंड एट द रेट ऑफ 3.6, ठीक है, अपॉन 5। और ये आपके पास आया क्या, दिस इज सपोज टू बी योर इंटरेस्ट। इसमें अब आप ऐड करोगे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या था, दैट वाज 480। सो आपके पास क्या चीज आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी। कैन यू आंसर इट ओवर हियर, हो जाएगा आंसर? एनी डिफिकल्टी विद दिस, एनी डिफिकल्टी विद दिस पार्ट? नो। चलो अब इसमें क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, डिट्टो सेम क्वेश्चन, डिट्टो Interest. कंपाउंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। तो बेटा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है? अब इसमें क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, यू विल डू इंटरेस्ट चाहिए, आई I चाहिए, is to A minus B. ए माइनस बी, शाबाश। आपने क्या करना होगा, ए माइनस बी। जहाँ पे ए आपके पास कैसे निकलता है, ए आपके पास डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से निकलता है, जो कि क्या होता है, पी ब्रैकेट फॉर्मूला, ये याद करने पड़ेंगे, आई डोंट थिंक एग्जामिनर देता है, आई डोंट थिंक सो, ठीक है। सो पी ब्रैकेट 1 प्लस आर ओवर 100 पावर ऑफ टी माइनस ऑफ पी, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास पी क्या था, पी वो 600 एंड bracket 1 plus 2.7 over 100 power of what, power of 4 minus what, minus of principal which is 600 as well। कर सकते हैं आसानी से, any difficulty with this part, can we do this, yes or no? कर लेंगे, all good, कर सकते हैं, yes, इजाजत है, आगे बढ़े, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है गाइस? आई डोंट थिंक सो गाइस। अगर किसी को कभी भी एट एनी मोमेंट कंफ्यूजन हो, डू लेट मी नो, शर्माना नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस किसी के लिए इजी होंगे, कुछ किसी के लिए मुश्किल होंगे, ठीक है। अच्छा चलो इसके बाद ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कहते हैं कंप्लीट द वेन डायग्राम। बेटा वेन डायग्राम कंप्लीट करना है, कुछ वैल्यूज गिवन है, ये आपके पास प्राइम नंबर कौन कौन से, फटाफट बताओ, व्हाट आर प्राइम नंबर्स आउट ऑफ दीज। प्राइम नंबर, इज वन अ प्राइम नंबर, ऑल्दो इट्स नॉट पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट, बट इज वन अ प्राइम नंबर गाइस, इज वन अ प्राइम नंबर? Yes. It's not a prime number बच्चे, one is not a prime number, prime numbers start from 2। प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं बच्चे, 2 से स्टार्ट होते हैं। तो मुझे बताओ इसमें क्या क्या होगा, कहना है इट्स गोइंग टू बी 2, इट्स गोइंग टू बी 3, इट्स गोइंग टू बी 5, इट्स गोइंग टू बी 6 छोड़कर इट्स गोइंग टू बी 7, फिर बेटा 8 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, फिर होगा 11, ठीक है। से प्राइम नंबर होगा। इज अ फैक्टर ऑफ 36, इज अ फैक्टर ऑफ 36 में क्या क्या आता है मुझे बताओ, निकाल लो 36 के फैक्टर्स बेटा। 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, फिर क्या आता है 3 इंटू 12, फिर क्या आता है 4 इंटू 9, फिर 5 से नहीं आता 6 इंटू 6। तो बेटा कौन कौन से फैक्टर्स है यहाँ पे जो उस यूनिवर्सल सेट में भी मौजूद है, कहना है ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ दीज, वन को छोड़कर, सॉरी वन इंक्लूडेड नहीं है, नॉट वन, इग्नोर वन। सो इट्स व्हाट, 2 3 4 6 9 एंड 12। अब मुझे बताओ कि अब अगर मुझे फिल करना है तो यहाँ सेंटर पे क्या कुछ आएगा, व्हाट विल कम इन द मिडिल। अच्छा एक और चीज, guys I'll be back 1 second। मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताओ क्या होता है बा, व्हाट इज द फॉर्मूला, क्या कैलकुलेट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से हम? विल आई हैव टू शो द वीडियो लेक्चर अगेन? ठीक है, वो आपके पास पूरा एक साथ अमाउंट कैलकुलेट होता है, दिस फॉर्मूला इज इक्विवेलेंट टू अमाउंट। गुड जॉब दैट यू आस्क्ड, ठीक है, ऐसे अभी रह जाता तो फिर गलत करके आ रहे होते। आई एम ग्लैड दैट यू आस्क्ड, ठीक है। सो विद दिस हेल्प और विद द हेल्प ऑफ दिस होल फॉर्मूला यू कैलकुलेट अमाउंट, यू डोंट कैलकुलेट इंटरेस्ट, एंड दिस इज पी। सो a minus p will give you interest for the case of compound, ठीक है। चलिए लेट्स गेट बैक। मुझे बताएं यहाँ पे गाइस व्हाट आर द कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन नंबर्स क्या है, कॉमन नंबर्स क्या है यहाँ पे, 2 3 and do we have anything else, no we don't have anything else, okay। so 2 और 3, इसके अलावा हमारे पास a में क्या है, 5 7 11, so 5 7 and 11। बेटा यहाँ पे क्या रह गया, 4 6 9 and 12, ठीक है। सो अब बाहर क्या आएगा, कुछ आएगा बाहर, मुझे बताओ। हमने 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया, 5 कर लिया, 6 कर लिया, 7 कर लिया, 8 भी मिसिंग, 8 नहीं किया ना हमने, 8 नहीं किया आई थिंक, राइट। सो 8 भी बाहर आएगा, ठीक है। 8 नहीं किया हमने, 9 हमने कर लिया, 10 नहीं किया, राइट, ठीक है। 11 एंड 12, 11 हो गया, 12 भी हो गया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू। कहता है लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी प्राइम। बेटा ए यूनियन बी प्राइम के कैसे निकालोगे, पहले मुझे बताओ।
डज दिस मीन कि मैं पहले ए यूनियन बी निकालूं? हाँ, डज दिस, मुझे बताओ बेटे, एक चैट कोई करेगा लग पता जाएगा, ठीक है? हाँ, सो मुझे बताओ, डज दिस मीन कि मैं ए यूनियन बी निकाल के प्राइम कर लूं 8 and 10? डू वी एग्री? यस और नो? डू वी एग्री विद दिस? इजी है या नहीं? जल्दी से बताओ, कर सकते हैं ऐसे? यस बेटा, ए यूनियन बी निकाल, ए यूनियन बी यही होता है ना, ए यूनियन बी, और उसका क्या कर लिया? प्राइम कर लिया। ज़ैनब क्यों नो कह रही है? गाइस एनीवन, कौन बताएगा? ज़ैनब बताओ क्यों नहीं? सर कॉम्प्लीमेंट के साइड से बी पे। गुड जॉब, शाबाश, गुड जॉब। स्क्रीन इज स्टक, गिव मी अ सेकंड। ठीक है, अच्छा देखो बेटा, अभी मैं पूछ रहा था ईशा, और आपने क्या कहा है? आपने कहा था ए यूनियन बी प्राइम, मतलब हम ए और यूनियन बी दोनों को छोड़कर उसका प्राइम निकालेंगे। बेटा अगर आपने वीडियो लेक्चर्स अच्छे से अटेंड किए हो ना, सो मैंने ये बात को डिस्कस किया था इन डिटेल के बेटा, दिस इज नॉट सेम एज ए यूनियन बी होल प्राइम, देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू, ठीक है? यहाँ पे प्राइम किसके दरमियान है बेटा? प्राइम इज ओनली फॉर बी, दैट मींस वी डू नॉट नीड बी एंड देन अ यूनियन विथ ए, ठीक है? whereas a यूनियन b एज अ होल प्राइम क्या होगा? पूरे a यूनियन b निकाल के फिर प्राइम करेंगे, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ठीक है? अच्छा, सो अब इसका क्या तरीका है? दो तरीके हैं। आप या तो, अगर आपको अच्छे से याद हो, हमने इसकी ट्रिक भी सीखी थी। क्या ट्रिक सीखी थी? लेट जस्ट से वी हैव दिस केस, ठीक है? मुझे बताओ हाउ डू फिगर आउट, इसको फिगर आउट कैसे करेंगे? वील डू अ ट्रिक, ठीक है? सो इफ यू आर डूइंग a यूनियन b प्राइम, लेट्स कॉल दिस a, लेट्स कॉल दिस b। मुझे बताओ, डू वी नीड a फॉर दिस केस? क्या a चाहिए या नहीं चाहिए? डू वी नीड a? चाहिए। ठीक है, तो a पे मार्क यस करो, दिस इज पार्ट ऑफ a, दिस इज पार्ट ऑफ a, ठीक है? नाउ टेल मी, डू वी नीड b? क्या b चाहिए? No. नो, सो नो एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर b। सो डू वी नीड दिस सर्कल? क्या सर्कल चाहिए हमें? वी डोंट नीड दिस, वी हेट इट। सो हम क्या करेंगे, इस b को छोड़कर बाकी जगह दूसरा कोई सिंबल लगा देंगे। अब मुझे बताओ, यूनियन का मतलब क्या था? एनी ऑफ द साइन इज अवेलेबल। अगर कोई एक भी साइन अवेलेबल होगा, दैट मींस वी विल बी कंसीडरिंग। इसका मतलब हम इसको भी काउंट करेंगे, इसको भी काउंट करेंगे, इसको भी करेंगे। सो व्हाट इज द आंसर? जल्दी से बताओ। कैन आई से इट्स गोइंग टू बी 2 3 5 7, 2 3 5 7 11 एंड व्हाट, फिर 8 एंड 10 भी आ रहा है, ठीक है? 8 और 10 भी आएगा। इज दिस पार्ट क्लियर? जल्दी से बताओ, क्या ये बात समझ आती है? Yes. यस सर ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ कि अगला पार्ट कैसे करेंगे? हाउ विल वी डू द नेक्स्ट पार्ट? n ऑफ a इंटरसेक्शन b प्राइम, व्हाट डज दैट मीन? दोबारा से कर लो, a इंटरसेक्शन b प्राइम करते हैं सेम मेथड से, a इंटरसेक्शन b प्राइम। अच्छा, सेम ही चीज थी ना, बल्कि सिंबल्स तो सेम ही होने थे, सॉरी। सो a में आपके पास सेम सिंबल आएगा, इंटरसेक्शन विद b प्राइम, b प्राइम का मतलब क्या था? एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर b, दैट मींस दिस एंड दिस। अब मुझे बताओ, इंटरसेक्शन में क्या करते थे हम? व्हाट वर वी डूइंग फॉर इंटरसेक्शन? वेयर? बीच का डबल टिक डबल टिक। तो बेटा डबल टिक कहाँ पे था? ओनली दिस रीजन। सो इस रीजन में कौन से नंबर्स हैं? ये नंबर्स है, राइट? सो क्या आंसर होगा इसका? कहना है 5 7 11, यस और नो? क्या कह सकते हैं हम? आई विल गेट बैक टू यू देन। कर सकते हैं? इज दिस करेक्ट? No, the answer is going to be what? 3. Why? Because the question says n. आपने n बताना है guys, इन चीजों को carefully evaluate करना है, ठीक है? So the answer is going to be what? 3. Good job with that. अच्छा, ज़ैनब क्या इशू था? आप कह रही हैं 2 and 3 क्यों आ रहा है बेटा? क्योंकि 2 and 3 में हमने एक सिंबल लगाया था ना, didn't we discuss 2 and 3 में? जरा देखो, we said at least one sign is available. Isn't one sign available in that case? हमें चाहिए था a union b. So can I say a में क्या क्या आएगा? Can I say this whole part is included in a? So this region and this region a, ठीक है? अब b प्राइम में we don't need this circle b नहीं चाहिए, so hence we discuss एक तो ये रीजन है कि ये रीजन है। एनी डिफिकल्टी इन शेडिंग दिस? क्या शेड कर सकते हैं आसानी से? यहाँ तक कोई इशू? एनी इशू सो फार? नो? Number 2 and 3 is a part of बेटा व्हाट इज? 2 and 3 is a part of B. बट बेटा यूनियन भी तो है साथ में। यूनियन क्या कह रहा है? कॉमन एलिमेंट। तो बेटा ए क्या उसमें नहीं था शामिल? आई थिंक यू फॉरगॉटन एवरी कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट ही भूल गए आप। सेट्स एंड वेन डायग्राम का वीडियो लेक्चर देख कर आइएगा प्लीज, ठीक है? वी हैव व्हाट? सेट्स एंड वेन डायग्राम ने इसको बनाया भी था, ए यूनियन बी प्राइम। वी माइट हैव ड्रॉन दिस एज वेल, और इन डिटेल समझा था हमने।
देखो एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम है यही वाली चीज, बस हमने सिर्फ प्राइम अगर बी पे लगाते तो ये वाला रीजन दोनों शेड हो रहे थे वो नहीं होते। ठीक है, गो वॉच वीडियो लेक्चर, उसमें इन डिटेल ये बात मैंने समझाई थी। ठीक है, चलो अच्छा अब जरा आ गया कहता है दीज आर द फोर टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, फोर टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस है, मुझे बताओ राइट डाउन द नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म क्या होगी, क्या हो रहा है बार बार कंटिन्यूअसली, व्हाट इज हैपनिंग, 4 4 होगा, why because every time we are doing what minus -3 of 3, so this is going to be 4। कहते हैं find an expression for the nth term of the sequence, कर सकते हैं, आसान है, इजी, स्किप कर दें, कर लोगे बेटा, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, दिस वुड बी वैल्यू फॉर ए वुड बी 16 एंड द वैल्यू फॉर डी क्या लोगे, जल्दी से बताओ, वैल्यू फॉर डी क्या होगी, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, -3 -3, गुड जॉब, वैल्यू फॉर डी इज सपोज्ड टू बी -3, बेटा नेगेटिव साइन के साथ लिखना, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटीज, अच्छा दिस इज फॉर 4 मार्क्स, कहता है फाइंड द 3 इनइक्वालिटीज दैट डिफाइन द शेडेड रीजन, बेटा शेडेड रीजन कैसे डिफाइन हो रहा है, कौन कौन से 3 केसेस है, पहले ये देखो, दिस इज द फर्स्ट लाइन, ठीक है, दिस इज द सेकंड लाइन, ठीक है, एंड दिस इज द थर्ड लाइन, 3 लाइन है, क्योंकि अगर आप देखोगे दिस इज अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बिटवीन 3 लाइंस, इफ वी हैव अ लुक एट दिस केस, जल्दी से पहले ये वाला केस बताओ क्या है, व्हाट इज दिस, डू वी एग्री दैट दिस इज y is equals to 2, यस, यहाँ पे कोई इशू, do we agree that this equation is supposed to be y is equals to 2, यहाँ पर कोई इशू, ठीक है, तो क्या यहाँ पे मैं equals to के साइन के साथ लिखूंगा या इसको हम बाद में चेंज No. करेंगे, जल्दी से बताओ, बाद में चेंज करेंगे, ठीक है, सो y2। अब दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास बेटा, ये वाली, अब मुझे बताओ इस लाइन पर ये कैसी लाइन, इज इट अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट डायगोनल लाइन, यस और नो, -, ठीक है, सो इसका ग्रेडियंट हमने क्या सीखा है, द m इज सपोज टू बी नेगेटिव फॉर दिस केस, एंड इसका c क्या होगा, व्हाट विल बी c फॉर दिस केस, c क्या होगा इसका बच्चे, positive 2 पॉजिटिव व्हाट 2, ठीक है, so what I know is this is supposed to be y is equals to mx plus of 2 where this m is supposed to be negative, तो बेटा m की वैल्यू क्या है, कैन आई से कोऑर्डिनेट से ले लो बेटा ये वाले, so you can easily find, you pick any of these coordinates and you find the gradient, gradient आपके पास इसका क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है, फाइंड कर लीजिएगा, कैसे फाइंड करोगे, m is equals to y2 minus y1 upon x2 minus 1 x1, कर सकते हो आसानी से, can we do it, जी। तो ये क्या हो जाएगा, y is equals to minus x plus 2, y is equals to minus x plus 2, तीसरी इक्वेशन क्या है, दोबारा से देखो, this is a again straight line, a straight slanted line, तो बेटा इसका c क्या होगा, what is the c for this case, what is c, it is 0, so it's going to be what, the gradient आप इसका find कर लोगे, again pick any two coordinates and find the gradient, gradient should be half, that is correct, ठीक है, so y is equals to what, half x हो जाएगा, so 3 इक्वेशंस बन गई, जरा देखते हैं, this was 1, this was, नहीं हमने क्या किया था, 2 वाली पहले की थी हमने, so this was equation 2, ठीक है, and this was equation 1 and this is supposed to be, तो उल्टा कर रहा हूँ ना मैं, this is 2 and the first one is 3, first one is 3, ठीक है, first one was 3। अच्छा मुझे बताओ कि शेडेड जो रीजन आर है, हमें क्या बताना है, अनशेडेड रीजन आर बताना है, वेयर इज अनशेडेड रीजन, किस तरफ है अनशेडेड रीजन, इसके ऊपर है नीचे है, इज इट ऊपर, नीचे की तरफ क्या less आएगा, than, बस लेस देन, इक्वल्स टू लगाएंगे, इक्वल्स टू लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, बेटा अब जरा देखो फर्स्ट केस पे, फर्स्ट केस ये था, रीजन इसके ऊपर है नीचे, वेयर इज द रीजन, इज इट अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, upwards, अपवर्ड्स क्या आएगा, इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर, greater than equals आएगा, to, इक्वल्स टू आएगा, शाबाश, क्यों बेटा, बिकॉज इट्स अ सॉलिड लाइन। तीसरा केस बताओ, तीसरे केस में क्या होगा, अगेन व्हाट आर वी गोइंग टू डू, तीसरे केस में क्या होगा, ये वाली लाइन में, वो लाइन 2, इस लाइन में, इज इट अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, अगेन इट्स greater than equal to, अपवर्ड्स पे क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, सो दोबारा से ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, कोई इशू यहाँ पे, सॉलिड लाइन के अंदर इक्वल टू लगता है ना साथ में, बेटा सॉलिड में इक्वल्स टू लगता है, डॉटेड में इक्वल्स टू नहीं लगेगा, इस जिसमें आगे बढ़े, कोई इशू यहाँ पे, नहीं सही, ऑल गुड, चलो अच्छा जरा ये देखो, कैलकुलेट द एस्टिमेट ऑफ द मीन मास, कैसा डेटा ये, ग्रुप में कौन सा है, दिस इज अ ग्रुप्ड बट अ continuous, कंटिन्यूअस डेटा, ठीक है, सो कंटिन्यूअस में क्या करेंगे बच्चों, व्हाट इज द फॉर्मूला दैट वी हैव लर्नड, दैट इज मीन इज सपोज्ड टू बी इक्वल्स टू, शाबाश, मीन इज सपोज्ड टू बी मिड पॉइंट तो निकालेंगे, बट summation of, summation of fx
over summation of f where x की values are supposed to be the midpoints. ठीक है, जल्दी से कैलकुलेशन कर लो. आपने यहाँ पे x लिखा, यहाँ पे 17 fx लिखा, यहाँ पे क्या है, शाबाश 17 होगा. अगला क्या होगा, 18 plus 24 is it 21. ठीक है, फिर this is going to be 24 plus 40 that is 64 divided by 2 is that 31 guys, can you check? No, Yes. not 32, 32, नहीं नहीं 32 होगा 32 होगा 32, 32. ठीक है, 32 and this would be 140 over 2 that is 70. So अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लो. What are the answers? जल्दी से बताओ क्या आंसर्स आ रहे हैं. What are the answers for this? 15 times of 70, 170 plus of. जल्दी से बताओ क्या आंसर्स आ रहे हैं. जल्दी से बताओ गाइस, आंसर्स बता दो जाओ. कैलकुलेटर्स नहीं है क्या आपके पास? It's a calculator version of the paper. You should be having calculators with you. Someone, hello? Anyone? First one is 85, then 60. 84, 85, 85 and then 85. 651, क्या बताया आपने? 651, 651 and 608, 608 and 1750. 1750. We add all these numbers बच्चे, यहाँ पे हम सारे numbers को add करेंगे. तो क्या हो जाएगा, 85 plus 651, सम बता दो क्या आ रहा है, 608 plus of 1750 upon of 80. आंसर क्या है, जल्दी से बताओ. What is the answer? What's the answer for this? 37.9. 37.9. ठीक है, 37 point of 9. चलो अगला पार्ट देखो. हाँ चलो, अब मुझे बताओ जरा. Work out the percentage of the members of the gym who are more than 24 years old. कैसे निकालोगे more than 24 years old की percentage, कैसे निकालोगे, जल्दी से बताओ. What are you going to do? How are you going to do this? 19 plus 25. Sorry, 19 plus 25. ये percentage 19 ऐसे plus नहीं. over हाँ, 80. Over 80 into 100. शाबाश शाबाश, good job, genius. देखो बेटा, more than 24, can I say all of these numbers state more than 24? Yes or no? Ages यहाँ पे given है, 24 से ज्यादा की एज है, ये भी 24 से ज्यादा की एज है. Hence, so the number of or the count of these people is going to be this. ठीक है, तो आपके पास 19 plus 25 is going to be the total count that is greater than 24. So 19 plus 25 upon the total count क्या था, 80 था, multiply by क्या कर लोगे, 100. And I think Zainab says the answer is 55%. ठीक है, सर्किल प्रॉपर्टी, इसको जरा ट्राई करो, जल्दी से बताओ कैसे होगा ये. टेल मी क्विकली. X is 50. Alternate segment theorem. क्या X is equals Guys, 50. Alternate segment theorem. x is equals to 50. ठीक है, शाबाश, x is equals to 50. एंड रीजन क्या होगी इसकी, व्हाट विल बी द रीजन? x is 50 and what is Theorem. going to be the reason? That is, there is a name of the property. What's the name of the property? जल्दी से बताओ. Alternate segment. Alternate segment theorem. शाबाश, alternate. गाइस यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? Any confusion with this part? No? अच्छा guys, just give me a second and think of the second part. जल्दी से second part सोचो क्या होगा. 1 second.
अच्छा, अपॉलॉजीज फॉर दैट गाइस, लेट्स कंटिन्यू। क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। वाई कैसे निकलेगा जरा देखो। आई थिंक यू गाइस मस्ट हैव गेस्ड इट ऑलरेडी। अच्छा, इस बात को समझो, आपने ये पार्ट बता दी 50 है ड्यू टू अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। आई गेस यहाँ पे कोई इशू नहीं, अगर किसी को है तो प्लीज बता दीजिएगा। इसके बाद वी नो दिस इज सपोज टू बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बिकॉज़ दोनों लेंथ्स इक्वल है, हेंस दिस वुड बी 50 बच्चे। इफ दिस इज 50, so this is going to be what, 100 minus of 180 minus of 100, इन दोनों को मिला के this gives us 80। and if this is 80 बेटा, do you see a quadrilateral, एक quadrilateral form हो रहा है with this and this being the opposite angles, hence this is going to be 100 minus of 80 and this is supposed to be 100। ठीक है, so working क्या करोगे, अगर इसको देखो 3 नंबर का है, एक तो आपने लिख दिया यहाँ पे, आपके पास क्या आया, क्या फाइंड किया आपने, 100 आया, ठीक है, बिकॉज यू सब्ट्रैक्टेड 80 फ्रॉम इट। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले यू से दैट एंगल EBF, गाइस व्हाट इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट, इस बात को जरा समझिएगा, ठीक है। यू से EBF इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, EBF इज सपोज्ड टू बी पूरे एंगल, गाइस 3 लेटर से एंगल लिखना है हमेशा, राइट द एंगल विद 3 लेटर्स, ठीक है। EBF इज सपोज्ड टू बी व्हाट, दैट इज सपोज्ड टू बी 50, व्हाट इज द प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, पहली चीज, इसका आपको मिलेगा मार्क। दूसरी चीज क्या लिखोगे, दूसरी चीज आप लिखोगे दैट इज गोइंग टू बी EFB इज व्हाट, EFB आपने क्या फाइंड किया, EFB इज सपोज टू बी 80 डिग्री, यही बताया आपने, और इस पे क्या प्रॉपर्टी लगाई आपने, इसको मुझे जल्दी से बताओ कैसे निकाला ये 80, क्या प्रॉपर्टी लगाई, Sum of triangle is equal to 180. शाबाश, सम ऑफ ट्रायंगल इज 180, ठीक है। सो यू आर गोइंग टू से सम ऑफ ट्रायंगल इज 180, ठीक है। तीसरी चीज क्या लिखोगे बेटा, तीसरी चीज लिखोगे EDB। EDB क्या होगा बेटा, EDB आपने बताया, EDB इज सपोज टू बी 100 डिग्रीज, और इसका रीजन क्या लिखोगे, साइक्लिक, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। बराबर, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। सो प्रॉपर्ली आपने सारी चीजों को आंसर करना है, ठीक है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। सर अगर इसके अंदर हम लोग सम ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स 180 के बजाय हम लोग लिखते हैं 180 माइनस करके लिखते हैं तो मार्क मिलेगा। लेट मी चेक, प्रॉब्ली नॉट, प्रॉब्ली नो, लेट मी सी। ये रिमार्किंग स्कीम जरा देखो क्या कहता है एग्जामिनर। करेक्ट रीजंस कह रहा है, और रीजंस क्या कह रहा है देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम अप टू 180 डिग्रीज। तो बेटा आपने रीजन लिखने, आपने कैलकुलेशन नहीं दिखानी, आपने रीजंस लिखने हैं। सो आप जो कर रहे हो, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी काउंटेड अंडर दी वर्किंग या कैलकुलेशन, वो रीजन नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 says, क्वेश्चन नंबर 18 says that the length of the cuboid is x बेटा, तो ये x आपके पास है, तो इसका मतलब ये चीज क्या है, दिस इज सपोज टू बी लेंथ। फिर कहते हैं द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 3 टाइम्स ऑफ लेंथ। बेटा अगर 3 टाइम्स ऑफ लेंथ है हाइट, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, व्हाट कैन वी कॉल दिस पार्ट, 3x 3x, शाबाश, अपने पास वर्किंग करते रहना। फिर क्या कहता है, द विड्थ ऑफ द क्यूबॉइड इज 4 सेंटीमीटर लेस देन इट्स लेंथ। तो बेटा अगर ये लेंथ है तो x विड्थ minus को क्या 4 कहोगे, x minus 4, जीनियस हो भाई, शाबाश। कहते हैं राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x, द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड एंड द विड्थ ऑफ द क्यूबॉइड, दोनों निकाल लिए बेटा। हाइट आपने क्या निकाला, 3x, और विड्थ क्या निकाला, x minus 4। अगला पार्ट क्या कहता है, अगला पार्ट कहता है द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर्स, ठीक है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फॉर्म एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x, शो दैट इट सिंप्लीफाइज टू दिस इक्वेशन। सबसे पहले मुझे बताओ कि ये कैसा सरफेस, ये कैसा शेप है, इट्स अ क्यूबॉइड, ठीक है। क्या एग्जामिनर ने हमें बताया ओपन टॉप, क्लोज टॉप, एनीथिंग, कुछ बताइए हमें एग्जामिनर ने। नहीं तो इसका मतलब कितनी सर्फेसेस होंगी, हाउ मेनी सर्फेसेस विल वी कंसीडर, वी विल बी कंसीडरिंग 6 6 सर्फेसेस, गुड जॉब। अब सरफेस एरिया के लिए क्या हमने कोई जनरल फॉर्मूला सीखा है फॉर प्रिज्म्स या फॉर एनी शेप, इज देयर एनी जनरल फॉर्मूला, या हम हर इंडिविजुअल सरफेस निकालते हैं। yes, O levels का पेपर है, but you're supposed to do this, yes, O levels का। so is this difficult or is this easy, Fatma, I'd like to know। जल्दी से मुझे बताओ, have we learned any, easy है ना, I mean it is what it is, ठीक है। so मुझे बताओ कि हमारे पास सरफेस एरिया का हमने क्या फॉर्मूला सीखा है, we've learned, one second, ठीक है। अच्छा, so हमारे पास क्या कहते हैं हम, हमने सारी सर्फेसेस फाइंड करनी है और उसको इंडिविजुअली ऐड करना है। इसमें हम ये समझते हैं कि दिस सर्फेस इज एग्जैक्टली सेम एज द सर्फेस ओवर हियर। सो बेटा ये सर्फेस कैसे निकलेगी, हाउ आर गोइंग टू फाइंड दिस सर्फेस, जल्दी से बता दो कैसे निकलेगी ये वाली सर्फेस, कैसे निकलेगी बच्चों, हाउ डू यू फाइंड दिस सर्फेस, एनीवन, माइक्रोफोन प्लीज।
3x minus multiplied by x minus 4 multiplied 2. शाबाश। तो ये आपके पास आएगी 2 टाइम्स ऑफ 3x, ठीक है। ये आपके पास जो लेफ्ट एंड राइट पे आएगी कैसे आएगी, 2 टाइम्स ऑफ 3x ऑफ व्हाट, x minus 4। इज दिस पार्ट क्लियर, यस और नो गाइस, एनी डिफिकल्टी विद दिस पार्ट? ठीक है। अब मुझे बताओ कि फ्रंट एंड बैक कैसे निकलेगी, लेफ्ट और राइट होगा। 3x में ब्रैकेट में नहीं आया। बेटा 3x तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना पूरे ब्रैकेट के साथ, ये तो अच्छा इस हाँ पूरी सॉरी। चीज के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, सो यू डोंट ऐड इट इन द ब्रैकेट, ये इस पूरी चीज के साथ 3x मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अब फ्रंट एंड बैक कैसे निकलेगा, हाउ आर यू गोइंग टू कैलकुलेट फ्रंट कैसे निकलेगा, x multiplied by 3x और multiplied ऐसा ही 2. बैक होगा तो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय 3x। इज दिस पार्ट क्लियर, यस और नो, एनी Yes. डिफिकल्टी विद दिस पार्ट? अब मुझे बताओ टॉप एंड बॉटम, टॉप कैसे निकलेगा, हाउ आर यू गोइंग टू कैलकुलेट द टॉप? x multiplied by 4 negative x. हाँ तो x multiplied by x minus 4 multiplied by. शाबाश, so this would be multiplied with 2 as well, so plus 2 times of x multiplied by x minus 4, ठीक है। और ये सारे आंसर किसके बराबर होने चाहिए थे, टू द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब व्हिच इज 200 क्यूबॉइड, सॉरी, ठीक है। सो अब मुझे बताओ 6x times of x that is going to give me 6x of square, 6x times of 4 that is going to give me minus 24 of x, ठीक है। फिर क्या कहता है, 2x and multiplied by 6 that would give me plus 6x 6x square. square, ठीक है। प्लस देखो प्लस क्या कहता है, प्लस 2x into x would give me what, that would give me 2x square, and plus 2x into 4 would give me what, that would give me minus of 8x is equals to 200। अब देखो x square वाली वैल्यूज ऐड कर लो, x square plus x square plus x square 12, 12 plus 2 gives me what, 14x square। क्या आंसर आएगा, 14x square minus 24 and minus 8x क्या देगा ये हमें, minus 24 minus 8 that would give me minus of 32x। बेटा 200 लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 200। नहीं हुआ प्रूफ, क्या मसला है, व्हाट इज द इशू, नहीं हुआ प्रूफ। Simplify. With 2x common. किस चीज से करोगे सिंपलीफाई, 2. किस चीज से करोगे, 2 से। जब 2 से करेंगे कैन आई से इट्स गोइंग टू बी 7x स्क्वायर माइनस ऑफ 16x माइनस ऑफ 100 इज इक्वल टू 0, कर सकते हो, यस और नो? 16x. हाँ 16x कर सकते हो, और आप लिख लोगे हेंस शोन और हेंस सिंपलीफाइड, ठीक है, हेंस शोन, ठीक है। अच्छा अब इसमें स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं गाइस, मुझे बताओ, लेट सपोज किसी से हो गई कोई गलती, यहाँ पे माइनर से एरर कर दिया, उनसे ये सॉल्व नहीं हो पाए, इट्स फाइन, नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अगला पेपर खराब नहीं करना। मुझे बताओ कैन यू नॉट सॉल्व आगे वाले पार्ट्स, कर सकते हो नहीं कर सकते? अगर खुदा ना खास्ता इवन इफ यू नॉट एबल टू शो एनीथिंग, कैन यू सॉल्व अदर पार्ट्स? Yes. स्टूडेंट्स वो ये भी छोड़ के Inshallah. आ जाते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स ये भी छोड़ के आ जाते हैं। डोंट मिस अदर क्वेश्चंस, स्पेशली फॉर दोस क्वेश्चंस वेयर यू आर सपोज्ड टू शो अ वैल्यू और प्रूव इट। फॉर एनी पार्ट, इफ द एग्जामिनर टेल्स यू टू शो इट और प्रूव एनी पर्टिकुलर वैल्यू, यू कैन ऑलवेज सॉल्व उसके बाद वाले पार्ट्स, उसको कभी स्किप नहीं करना, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें शो करना है या प्रूव करना है, keep in mind you can still solve the other parts in case if God forbid you're not able to solve the initial वाले parts, ठीक है। अच्छा अब कहता है solve the equation 7x square minus 16x minus 100, कर सकते क्वाड्रेटिक से, क्वाड्रेटिक 2 डेसिमल, क्यों पता क्वाड्रेटिक से करेंगे, देखो हम इसको 3 तरीके से कर सकते थे, मिडिल टर्म से जो कि फैक्टराइजेशन, हम इसको कर सकते थे कंप्लीटिंग स्क्वायर से, हम इसको कर सकते थे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ठीक है। Now I would prefer quadratic formula for this. Why would I prefer that? Because examiner said 2 decimal places. 2 decimal places means कि ये थोड़ी सी complicated equation है, ये शायद आपके पास इन मेथड से उतना easily solve ना हो सके, इससे तो हो जाएगी, इससे तो हरगिज नहीं हो पाएगी, ठीक है। So go for quadratic formula. I'll solve it today. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करेंगे, सो क्या कहता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आपके पास द गुड पार्ट इज आई थिंक एग्जामिनर देता है फॉर्मूला इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, राइट? अगर याद नहीं है किसी को, लेट मी चेक। दिया हुआ है, देखो ये भी एग्जामिनर ने दिया हुआ है, जिंदगी आसान, ठीक है, जिंदगी आसान। सो इट्स गोइंग टू बी व्हाट, माइनस बी प्लस माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस ऑफ रूट ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ac अपॉन ऑफ 2a। बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, b की वैल्यू क्या है, क्या हमें पता है, दैट इज, ठीक है। सो इट इज व्हाट, a इज व्हाट बच्चे, a इज 7, b इज व्हाट, b इज 16 एंड c इज 100। क्या मैंने वैल्यू सही लिखी है, कोई इशू तो नहीं है? इज दिस करेक्ट? -16. -16 and
नेगेटिव ऑफ -100 100 बेटा साइन के 100 साथ करने, शाबाश, अदरवाइज गलत हो जाएगा, ठीक है। यू हैव टू यूज साइंस। सो आपके पास क्या होगा, व्हाट विल दिस बी, कैन आई से x विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स, जहां जहां ए बी सी ब्रैकेट लगा लो, जिंदगी आसान करो, ठीक है, प्लस माइनस रूट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर -4 ब्रैकेट ब्रैकेट अपॉन 2 ऑफ ब्रैकेट, वैल्यूज प्लग इन, ठीक है। बेटा अभी 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, बल्कि ज्यादा ही रहता है, टाइम लगेगा, अभी टाइम लगेगा, या एक घर के लिए दे सकता हूँ, ये कर सकते हैं हम, दैट इज व्हाट वी कैन डू, अगर जल्दी जाना है तो ये सॉल्व भी कर सकते हैं पूरा, अप टू यू गाइस। अच्छा, सो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास दिस वुड बी व्हाट, दिस वुड बी माइनस ऑफ 16 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, दैट इज माइनस ऑफ 16 स्क्वायर, 4a इज 7। अच्छा, इसके अलावा सी हमारे पास क्या होगा, माइनस ऑफ 100 अपॉन 2 ऑफ a विच इज 7, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा। अब इसके बाद रिकॉर्डिंग तो हमेशा पड़ी होती है, टेंशन थोड़ी, कल तक रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी। सो इसके आंसर्स निकाल सकते हो, जल्दी से बताओ, अब वर्किंग हो जाएगी या नहीं गाइस, किसी को इशू, अब जल्दी से बता दो प्लीज, अब कर सकते हो वर्किंग? नहीं यस कर लोगे, चलो इसके दो आंसर्स निकाल लेना, ठीक है। इसके मैं दो आंसर्स लिख रहा हूँ यहाँ से, क्या है इसके आंसर्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 18 डी। 18 डी के आंसर्स क्या है हमारे पास, दैट इज 15.27, 15 नहीं 18 डी है क्या, नहीं 18 सी है, सॉरी 18 सी के आंसर्स है हमारे पास 5.09 एंड -2.81। अब कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। गाइस हाइट ऑफ द क्यूबॉइड आपने कैसे लिखी थी, 3x से। सो बेटा 3x में कौन सी वैल्यू कंसीडर करोगे, जल्दी से बताओ, हाइट निकलेगी 3 टाइम्स ऑफ x, positive व्हाट वैल्यू विल, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो बेटा आपने कर लेना है 3 टाइम्स ऑफ 5.09 को सॉल्व, ठीक है, जल्दी से कर लीजिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 19, दिस इज इंटरेस्टिंग, कहते हैं कैलकुलेट एंगल BAD। बेटा बैड कैलकुलेट करना है, जो कि ये एंगल है, कैसे निकालोगे एंगल, फटाफट बताओ, हाउ विल यू कैलकुलेट दिस। cosine दिस पेपर इज इंटरेस्टिंग, ये बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है, आई थिंक जो अब आगे वाले पार्ट्स cosine हैं, और बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं, दिस इज लाइक एवरेज पेपर। कोसाइन रूल कैसे पता, कोसाइन रूल बेटा, हाउ डू वी नो इट्स अ कोसाइन रूल, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल, इज दिस अ राइट angle एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल no ट्राइंगल नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, 3 लेंस एंड 1 एंगल, सो 3 लेंस एंड 1 एंगल वाज सपोज्ड टू बी कोसाइन रूल। कोसाइन रूल के फॉर्मूलाज याद कर लो, आपको कहता है फॉर्मूला ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ 2bc टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ ए। मुझे बताओ बेटा यहाँ पे इस ए में क्या आएगा, व्हाट विल कम इन दिस ए, गिवन भी है, बल्कि यू आर राइट, गिवन है, क्या उन्होंने सिंप्लीफाइड फॉर्म दी हुई है इसकी, नहीं सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं दी हुई। अच्छा मुझे बताओ कि क्या आएगा यहाँ पे, ए में क्या आएगा, यस इट्स गिवन बट सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं दी हुई, ए में क्या आएगा जल्दी से बताओ, 7 व्हाट विल यू प्लग, 7 स्क्वायर। सो अगर 7 स्क्वायर डिसाइड हो गया, 12 एंड 6 कहीं पे भी आ जाएगा, 12 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 7 टाइम्स ऑफ 6 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ ए विच इज अननोन। सो बेटा 7 माइनस 12 हो जाएगा, 7 स्क्वायर इज व्हाट, 49, 49 yes, so it will be what, 49 minus 144 minus of 36 is equals to minus 2 times of 7, 14, 14 times 6, क्या होता है इसका आंसर, जल्दी से बताओ, what is the answer for this part, what is the answer for this part, 6 6 30 6 42 84, is it 84, is it 84 guys, ठीक है। सो अब आपने क्या करना है, आपने इन सारी वैल्यूज को फाइंड करना है, इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से गाइस कैलकुलेटर यूज करिए, यू गाइस आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस पार्ट, दिस रेक्टेंगल, देयर इज an important concept that I want to tell you, नीचे important questions है नीचे बहुत ज्यादा। अच्छा इसको एक काम करें, जल्दी से समझा के होमवर्क दे दूं, ऐसा करें, -131 because you guys are taking minus 131, so minus 131 131 over minus of 84 is equals to cos of a, चेक करो इससे आंसर आ रहा है क्या, will this give us a correct answer, I doubt, चेक करो इससे, check it, cos इनवर्स करके लगा सकते हैं cos inverse of this करना है, चेक करो इससे आंसर आ रहा है कैसे, or does it give a mathematical error,
चेक करो, does it give you an answer guys? एरर आ रहा है ना? What are we missing? B87 square is equals to 12 square plus 6 square. Do I have a calculator with me? Wait. So this is supposed to be 2 times of 12 into. अच्छा देखो ना, numbers हमने गलत select किए. We selected the numbers गलत. ये वाले क्या होने चाहिए थे? We selected this incorrectly. What were these numbers supposed to be? 12 and 6. B था 7 नहीं 12 and 6 होने चाहिए. 7 की जगह 12 है. 12. Sorry. This is 12. So this is going to be 2, 12 and 6. 2 into 12 and 6. 1844. अब हो जाएगा. Why? Because आपके पास this is supposed to be a value greater than minus of 144. ये आपके पास value greater than और lesser than 1 होनी चाहिए. As the whole. अब आंसर सही आएगा. ठीक है? Because this cannot be greater than 1. This ratio. 24.5. 24.5. ठीक है? 24.5. अच्छा, I'll ask you a question and हम इसको जल्दी जल्दी wrap up करेंगे because आगे interesting question, हमें ज्यादा time waste नहीं करना. मुझे बताओ कि अब जब ये आ गया, अब मुझे बताओ कि AC कैसे कैलकुलेट करोगे? हाउ विल यू Sine कैलकुलेट rule. AC? Sine rule. साइन रूल कौन सी प्रॉपर्टी से? कहाँ, किस किस के दरमियान? किस B. किस के दरमियान? C और C B और and C. AB होगा और फिर B और AC. अच्छा, so you're saying this part, this is one part and B and AC. शाबाश, आपने ये फाइंड करना होगा along with this part. Guys, is this clear? Does this make sense? क्या ये एंगल फाइंड कर सकते हो? Does this make जी. sense? Yes, sir. ठीक है. सो एंगल फाइंड करके अप्लाई कर लोगे. आई थिंक यू गाइस आर स्मार्ट इनफ टू फिगर इट आउट. अच्छा, अब जरा इस क्वेश्चन को देखो. इस क्वेश्चन में क्या करोगे? द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5.4 नियरेस्ट टू 0.1. सो आपने इसका हाफ, दैट मींस दिस इज गोइंग टू बी अपर बाउंड कैलकुलेट करना है. सो 5.45. ठीक है. फिर कहते हैं द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 26.4 नियरेस्ट टू ये. कैलकुलेट द लोअर बाउंड ऑफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. हमें लेंथ फाइंड करनी है. तो बेटा लेंथ कैसे निकलता है? हाउ डू वी कैलकुलेट लेंथ? लेंथ कैसे निकलती है ऑफ पेरीमीटर? शाबाश. पेरीमीटर सपोज टू बी 2L प्लस 2 टाइम्स ऑफ B. ठीक है, या 2 टाइम्स ऑफ विड्थ कर लो, एग्जामिनर ने विड्थ दी है. अब मुझे बताओ कि इफ यू वांट 2 टाइम्स ऑफ विड्थ, इफ यू वांट द पेरीमीटर, इफ यू वांट टू फाइंड व्हाट, इफ यू वांट टू फाइंड द लेंथ. ठीक है, लेंथ फाइंड करना है तो क्या हो गया आपके पास? L क्या हो जाएगा? L is supposed to be 2L is supposed to be what? P minus of 2W. Now tell me when will this value be lowest? ये value lowest कब आएगी? When your P is supposed to be small or greater? P कैसा होना चाहिए? Small. Small. और W कैसा होना चाहिए? Great. Great. ठीक है. सो बेटा P की वैल्यू क्या होगी? If my P is 26.4 correct to 0.1, तो बेटा इसकी स्मॉल वैल्यू कैन आई से दैट इज गोइंग टू बी 26.35. मतलब ये वाली यहाँ पे 26.35. एनी डिफिकल्टी विद दिस? जल्दी से बताओ. कैन यू प्लग इट इन ओवर हियर? यस. और ये तो आप W तो ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो 5.45. तो आपने क्या करना है? L is supposed to be 26.35 minus of 2 times of W which was 5.45 upon 2 हो जाएगा. एनी डिफिकल्टी? एनी मुश्किल सो फार? नो. अच्छा चलो, कहते हैं राइट डाउन द नंबर. अच्छा, दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू टेल. नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री. वी माइट हैव नॉट डिस्कस्ड इट मच, बट प्लेन्स ऑफ सिमेट्री भी एग्जामिनर आजकल बहुत कुछ पूछ रहा है. सो यू शुड बी नोइंग व्हाट प्लेन्स ऑफ सिमेट्री आर. So I have it with me today. So what are planes of symmetry? जरा इस बात को समझो guys. Planes of symmetry are for 3D shapes. ठीक है, this is a relatively a newer topic जो कि examiner बहुत frequently test कर रहा है. ठीक है, what are planes of symmetry? Planes of symmetry are basically going to exist for 3D shapes. Now think of it in a way कि if you have a certain shape, a rectangle or anything, and you're going to slice it in such a way, you're going to cut it in such a way that you get 2 equal parts of it. ठीक है. So उसके 2 equal parts कैसे होंगे? If you're, let's just say, slicing a bread, or if you're doing any such, if you're cutting a shape into 2 equal parts, a 3D shape basically. So आपके पास कितनी planes बनेंगी? Equal. So that is what you need to think. So बेटा for the case of cube, आप उसको कितने equal parts में cut कर सकते हैं? Can I say if this was a cube initially, if I zoom it in, so there are going to be 9 possible ways for a cube that you can cut it into equal parts. ठीक है, so आप शायद 9 equal parts में इस cube को cut कर सकते थे. If I had
अ क्यूबॉइड, तो बेटा क्यूबॉइड के लिए आप कितने प्लेन्स में कर सकते थे? ओनली फॉर 3 प्लेन्स। कैसे? एक आप इसको इस तरीके से कट कर सकते थे, ठीक है, एक आपको इस तरीके से कट कर सकते थे, इन दिस मैनर यू कट इट, और व्हाट इज गोइंग टू बी द अदर वे इज गोइंग टू बी दैट यू कट इट इन दिस मैनर। डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस और नो? डज दिस मेक सेंस? क्या बात समझ आती है? Yes, sir. यस अगर मेरे पास इक्विलेटरल प्रिज्म है तो बेटा इसमें कितनी प्लेन्स ऑफ सिमेट्री बनेंगी? 4। अगर मैं उसको इस तरीके से कट करूं, इस मैनर में, एक इक्विलेटरल है तो मैं उसको इस मैनर में भी कट कर सकता हूं या इस मैनर में भी कट कर सकता हूं। बट सर ये तो 3 है, चौथी कैसे बनेगी? बेटा चौथी अगर आप मैं इसको इस जगह से कट करते, क्या ये बात समझ आती है? डज दिस मेक सेंस? डज दिस मेक सेंस? यस और नो? ठीक है। फॉर द केस ऑफ प्रिज्म्स कीप इन माइंड इफ दोज आर रेगुलर प्रिज्म्स, ठीक है, अगर क्या है आपके पास रेगुलर प्रिज्म्स है आपके पास, तो प्रिज्म्स में कितनी होंगी? n+1। क्या मतलब? बेटा अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो 3 इसके n होंगे, मतलब 3 साइड्स एंड 1 इसका ये, सो 4 प्लेन्स। बेटा इक्वल आपके पास रेगुलर हेक्सागोन है, सो क्या होंगी? 6 प्लेन्स इसकी हर साइड से कट होने का और एक यहाँ से कट होने का, 7 प्लेन्स। अब जरा पिरामिड्स को समझिएगा। अगर मेरे पास एक स्क्वायर बेस पिरामिड है गाइस, इफ आई हैव अ स्क्वायर बेस पिरामिड, सो हाउ मेनी वेज कैन यू कट दिस? एंड यू कैन कट दिस इन 4 वेज। कितने वेज में कट कर सकते हैं इसको? आई डोंट थिंक आई हैव रिटन इट, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ ना, 4 वेज में कट कर सकते। कैसे? अगर मैं उसको यहाँ से इस मैनर में कट करूं, दैट इज 1 वे, इस मैनर में कट करूं, दैट इज सेकंड वे, एंड द थर्ड एंड फोर्थ क्या होगा कि मैं इसको डायगोनली कट करूं फ्रॉम द टॉप स्लाइस। डज दैट मेक सेंस? क्या इस बात समझ आती है कि इसको 4 कैसे होंगे? ठीक है। बट अगर मेरे पास एक ट्रायंगुलर बेस, व्हेन द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, इट्स नोन एज अ टेट्राहेड्रन। तो बेटा टेट्राहेड्रन की यू आर गोइंग टू हैव 6 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री, एंड देन लाइकवाइज आपके पास सिलेंडर की इनफिनिट होंगी। सिलेंडर की या कोन की इनफिनिट की होंगी या स्फीयर की इनफिनिट की होंगी, दीज वुड हैव इनफिनिट लाइंस ऑफ सिमेट्री। व्हाई? बेटा यहाँ से तो आप एक तरीके से कट कर सकते हो, बट अगर आप केक को देखो, क्या मैं कह सकता हूँ, आप नाइफ ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ, यू कैन कट इट इन सो मेनी वेज। डज दिस पार्ट मेक सेंस? यस और नो? क्या बात समझ आती है? Yes. So there are going to be numerous infinite planes of symmetry for this case. So I have this document, ये मैं अपलोड कर दूंगी, अभी आपके पास शायद अपलोड नहीं होगा, but you need to go through this because examiner आपसे planes of symmetry काफी frequently पूछ रहा है, so you should be knowing this as well. ठीक है? अच्छा, let's move on to the paper. पेपर कहाँ था हमारे पास? यहाँ पे था। ठीक है। अच्छा, so this is what you should be knowing for this case. अब मुझे बताओ कि कैसा केस है? This is a इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल के कितने केसेस होंगे? अब ये टेट्राहेड्रन नहीं है। व्हाई इज दिस नॉट अ टेट्राहेड्रन? बिकॉज ऑल ऑफ दीज साइड्स आर डिफरेंट। ये आपके पास डिफरेंट है एंड ये डिफरेंट है। अगर ये टेट्राहेड्रन होता, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेट्राहेड्रन? ये टेट्राहेड्रन में आपके पास सारे शेप्स बराबर होते हैं, मतलब ये वाली सरफेस, बैक वाली सरफेस, फ्रंट वाली सरफेस एंड बॉटम ऑल आर सेम। व्हेन दैट इज द केस, यू आर गोइंग टू हैव 6 प्लेन्स। बट ये टेट्राहेड्रन नहीं है, इसमें आपके पास यू आर ओनली गोइंग टू हैव 3 planes of symmetry in such a way that you're going to slice it either in this manner, considering it's equilateral, either in this manner, either in this manner from this corner or in this manner from this corner. Is this part clear? क्या बात समझ आती है? Does this make sense? बात समझ आ रही है? Do you want me to help? Do you want me to draw proper planes of symmetry for this case? जल्दी से बताओ, नहीं भी समझ आ रही तो it's fine. Tell me. It's fine, समझ आई है? So for this case you're going to have 3 planes of symmetry. कैसे? कि आप इसमें अगर आप नाइफ चलाते हो, so you'll probably slice it in this manner like this. टॉप से आप टॉप से कट करोगे in such a way कि you either slice this shape from here or from here or from here. So only in 3 possible options. ठीक है? फिर क्या कहता है? फिर कहता है m is the midpoint of AC. अब कहता है m is the midpoint of AC. So अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? m is the midpoint of AC. Show that OB is 19.6. ठीक है, और रेशो क्या कह रहे हैं? MO and OB is 1:2. सो MO रेशो OB इज इन 1:2 के फॉर्म में। ठीक है, 1:2 के फॉर्म में है, एंड मजीद कह रहा है OB इज 19.6। OB आपके पास क्या होना चाहिए? 19.6 प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे? कौन बताएगा? हाउ आर यू गोइंग टू प्रूव दिस केस? हाउ विल यू प्रूव दिस? Sir, A is 34 and M is the midpoint, so it's the half of 34. बेटा ये वाला ठीक है, हाफ ऑफ 34। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? 17। ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर Then क्या Pythagoras करोगे? to find MB. पाइथागोरस।
ठीक है, सो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर? कैन आई से दिस इज माय हाइपोटेन्यूज, इट्स गोइंग टू बी 34 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17 स्क्वायर प्लस दैट ओबी स्क्वायर या एमबी स्क्वायर, ठीक है, एमबी स्क्वायर। सो बेटा एमबी की वैल्यू क्या आएगी? एमबी वुड बी रूट ऑफ 34 माइनस 17 स्क्वायर। सो व्हाट इज द आंसर फॉर एमबी, सॉरी एमबी का आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताओ, लेट मी हैव अ लुक एट दिस एज वेल। एमबी का आंसर क्या है आपके पास? दैट इज क्या आया? What is the answer? Guys, use your calculator. Fatafat. Root of minus 17 square. So this turns out to be 9.44. 29.44. But if this is 29.44, okay, if this is 29.44, now tell me, how are you going to prove that OB is 19.6? इसको कैसे prove करोगे बच्चे? कैसे prove करोगे? 2 by 3 into 9.4. Good job. Why? Because it was in the ratio of 1 and 2. So this is only going to be two times out of the 3 times. What are you going to do? It is going to be into 2 over 3. So you're going to do into 2 over 3. So beta prove हो जाएगा आपके पास, that is 19.63 यार, ठीक है। So 19.63, but you're only supposed to give the answer to one decimal place, so you'd say it's going to be 19.6, ठीक है। चलो आगे करो। Calculate the angle between the edge VB and the base of the pyramid. Edge VB और base of the pyramid कैसे calculate करोगे बेटा? VB and base of the pyramid, तो कौन सा एंगल फाइंड करवाना है पहले मुझे ये बताओ। आपने कहा VB, दिस इज VB, इस बात को समझो जरा, दिस पार्ट इज VB एंड बेस ऑफ द पिरामिड मेरे पास ये है, ठीक है। सो मुझे बताओ, आप जब एंगल मेजर करोगे कैसे मेजर करोगे? विच एंगल आर यू सपोज्ड टू मेजर? VBO. शाबाश, वीबीओ करोगे। व्हाई? बिकॉज आप बेस पे एक सेंटर पे लाइन ड्रॉ करते हो एंड दिस इज द एंगल दैट यू सपोज्ड टू फाइंड। अब ये एंगल कैसे फाइंड करोगे? डू वी नो दिस टू बी 19 पॉइंट व्हाटएवर, 19.6, दिस पार्ट, and this gives us a what? A right angle triangle. So angle कैसे apply find करोगे? Which rule will you apply? Trigonometric ratio. Trigonometric ratio, and कौन सा वाला लगेगा formula? Which formula will you apply? Sine. Tan. Good job. So tan theta, tan लगेगा, tan, ठीक है। So this is going to be what? Tan of, no wait, is this hypotenuse? It's hypotenuse. So right, you're right. It's going to be sine. Hypotenuse is, so it's going to be sine, ठीक है। What are you going to do? This is going to be sine theta. Absolutely correct. Sine theta is equals to opposite. Wait. No. क्या लगेगा? सोचो जरा इस बारे में। We are not thinking at all. जरा गौर से सोचो क्या लगेगा। Think about this. This is the angle that you're supposed to find. Don't hurry. This is 19.6 and this is 82. Mark कर लो जगह से। This is my 90 degrees. 90 के सामने क्या लगेगा? What is opposite to 90 degrees? That is 90 के सामने क्या है? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। एंगल के साथ क्या है? दैट इज माय एडजेसेंट, बिकॉज़ ये ऑपोजिट था। तो बेटा कॉस लगेगा, ना तो साइन लगेगा ना तो टैन लगेगा, ठीक है। सो वी आर डन विथ मैथ्स टुडे, आई थिंक। बहुत दिमाग हमारा जो है ना। cos theta is equals to 19.6 over 82 and you can find the angle. कर लोगे अब? हो जाएगा? Can you do this? Yes or no? हो जाएगा? चलो आगे बताओ। कॉस्ट लगेगा, गुड जॉब, ठीक है। अब कहते हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड का फॉर्मूला देखो जरा क्या है। दैट इज 1/3 टाइम्स बेस एरिया इनटू हाइट। आपको याद करने की जरूरत नहीं, वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड का फॉर्मूला इज गिवन, ठीक है। over here it is 1/3 times area times height, but ये area क्या होता है guys? Keep in mind for the case of pyramid this is supposed to be the base area. Now what is my base? Base क्या है यहाँ पे? What is the base over here? What is the base, guys? What's the base? Base क्या है यहाँ पे मेरी? This is supposed to be my base. Equilateral triangle. So बेटा equilateral triangle का area कैसे निकलेगा? What is known to us? Is there anything? How can we find the area of this equilateral triangle? Formula. Half AB sines. Equilateral triangle है with sides being 34. So बेटा क्या होगा? Can I say it's going to be half times of 34 times of 34 times of what? Sin C. C क्या होगा? जल्दी से बताओ। Considering it's equilateral. Equilateral में angles क्या होते हैं? What are the angles? 60.
Angle is what? Angle is 60 equilateral में. Isn't that so? Difficulty हो रही है? Any difficulty so far? No, sir. No. So आपने area find कर. Imagine this is for 5 marks. So once you have this area, you will get what? You will get area from here. बेटे जब area हो गया उसके बाद क्या करना है? आपने करना है volume is equals to 1/3 times of area times of height. ठीक है. So height क्या होगी? What is going to be the height? Do we know the height? Is it going to be 82? No. कैसे No. निकलेगी height? Pythagoras. Height कैसे निकलेगी? Pythagoras से. ठीक है. Pythagoras. Good job. So this is going to be my height and which is going to be found using Pythagoras. बच्चे so height कैसे निकालोगे? For the case of height, you're going to do 82 and then this is going to be 19.6 and this is h and h is going to be found using root of 82 square minus 19.6 का square. That is going to be right. अब solve कर सकते हो? Can you do it now? Yes or no? हो जाएगा? हो जाएंगे पार्ट्स? चलो आगे देखो. हाँ, last question for today. Last question. This is interesting. Very interesting. Now, whoever answers this is basically a genius. Last question आप लोग कराओगे मुझे. कैसे होगा? जल्दी से बताओ. Tell me. How will we do this, guys? How will we do this? बताओ. Good job, good job, good job, good job. This is for how many marks? 4 marks. ठीक है. So मुझे बताओ what is the. ठीक है. Let's give it a try. This may work. Let's see. अच्छा, a box contains 13 pencils. There are 4 red pencils, 7 green pencils, 2 yellow pencils in the box. 2 pencils are chosen at random from the box without replacement. Work out the probability that the 2 pencils are different colors. So बेटा different colors की आप जरा ये सोचो कि different color की possibility क्या क्या हो सकती थी? Green, yellow and red. If I have green, yellow and red, so मुझे क्या करना होता? मुझे green, yellow एक ये हुआ और एक ग्रीन रेड. ठीक है. और एक ग्रीन रेड. फिर आपके पास येलो रेड. ये तो एक पॉसिबिलिटी हुई. बट ये रिवर्स में भी हो सकता था. अगर आपने पहले येलो, बाद में ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर येलो. सो फाइंडिंग आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 एंड देन एडिंग, इट्स kind of a hectic job, right? So what will we do? Instead हम करेंगे 1 minus the probability of same, 1 minus probability of same. और बेटा सेम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इट्स गोइंग टू बी P ऑफ सेम. कैसे निकलेगी बेटा? P ऑफ सेम निकलेगी आपके पास. दैट इज रेड के क्या ऑप्शंस थे? टोटल 13 थी ना. द टोटल वाज 13. सो रेड थे 4. तो बेटा आर की क्या होगी? दैट इज गोइंग टू बी 4/13 टाइम्स क्या होगा? 3/12. इज दिस क्लियर? डज दिस मेक सेंस? यस और नो? प्लस दूसरी क्या होगी? आर हो गया. इसके बाद करो जी एन जी. जी का क्या केस था बेटा? जी वर्स 7. तो ये क्या होगी? जी का केस. दिस इज फॉर आर. अब कर लो जी एन जी. So G over 7. So this was supposed to be 7/12 times 13 times 6/12 plus y कर लो. Y के क्या केसेस थे? y/2. So it's going to be 2/13 times 1/12. So इसको फाइंड कर लो आंसर और 1 से सब्ट्रैक्ट कर लो. मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है? 1 minus ये कर लो. What is the answer for this? What's the answer for this? This is 4 into 3. This is 12. ठीक है. 12 plus 76. 7 into 6 is what? 6, 36, 42 plus of 2. So this is 54 and 56. 1 minus 56 over what? 13 times of 12 is what? That is 144, 156. ठीक है. तो इसका मतलब क्या होगा? This is 156 over 156 minus 56 over 156. So the answer is what? 100 over. Is this part clear? Is this clear, guys? Yes or no? जल्दी से बताओ. कोई difficulty यहाँ पे? Any difficulty? Any questions? Any queries from this paper? कोई issue यहाँ पे, guys? No? So what do you have to say about this paper? अच्छा, अभी leave नहीं कीजिएगा. एक second. Stay over here for a minute.